میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا فرانس کی، اور فرانس کے بارے میں آپ کو ایسے دلچسپ حقائق سے بھی آگاہ کروں گا جن کے بارے میں آپ لوگ آج سے پہلے لا علم ہوں گے۔ دوستو، فرانس کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو فرانس بھی دیگر کئی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر فرانس کا اہم ترین دور شروع ہوتا ہے سلطنت روما کے قیام سے، جب فرانس کو سلطنت روما کا حصہ بنایا گیا تھا۔ فرانس میں پہل آباد کاری کرنے والے جرمن قبیلے کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو فرانک کہا جاتا تھا۔ 50 قبل مسیح سے 1486 عیسوی تک فرانس کے اس حصے کو، جہاں آج فرانس آباد ہے، ایک یونانی کالونی بنایا گیا تھا۔ 486 عیسوی سے 751 عیسوی تک کے دور میں میرونجین خاندان نے حکومت کی۔ یہ خاندان فرانک قبیلے کے سردار خاندانوں میں سے ایک تھا، اسی لیے 486 عیسوی سے آنے والے اگلے دور کو فرانکیا کہا جاتا تھا۔ 751 عیسوی تک میرونجین خاندان تقریباً 300 سالوں تک حکومت کرتا رہا، اور فرانک قبیلے میں ہی ایک اور خاندان تھا جو پچھلی 2 صدیوں سے بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا، جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ فرانس کے ایک قدیم خاندان کی ایک شاخ جو فرانکی سلطنت کے آغاز سے پہلے ہی الگ ہو گئی تھی، 1328 عیسوی سے فرانس کے تخت پر براجمان ہوئی۔ اس خاندان کو والوا خاندان کے نام سے شہرت ملی۔ والوائس بھی اسی خاندان کو کہا جاتا تھا۔ اس خاندان نے 1589 عیسوی تک فرانس پر حکومت کی۔ 1589 عیسوی سے 1792 تک کے دور میں بوربن خاندان نے فرانس پر حکومت کی۔ بوربن خاندان کے اس دور میں عوام نے اپنی زندگی کے ایسے دن بھی گزارے ہیں جب ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ایک عورت کو اپنی عزت 4 بار بیچنا پڑتی تھی۔ اس دور میں فرانس میں 3 طرح کے لوگ بسا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جنہیں مذہبی پادری کہا جاتا ہے، جن کے پاس فرانس کی 10% زمین تھی۔ یہ پادری حکومت سے بھی اوپر مانے جاتے تھے۔ ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانے کی مکمل اجازت تھی۔ دوسرے نمبر پر حکومتی اراکان آتے تھے، جنہیں اشرافیہ کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس فرانس کی 45% زمین آتی تھی۔ پادری اور اشرافیہ کو تیسرے طبقے یعنی جو تیسری قسم کے لوگ تھے، جن میں مزدور اور چھوٹے موٹے کاروباری لوگ آتے تھے، ان پر 15 مختلف قسم کے ٹیکس لگانے کی اجازت تھی۔ انقلاب فرانس کو تاریخ میں 1789 سے 1794 یا 1799 تک کا کہا گیا ہے۔ اس انقلاب کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ پادری یعنی چرچ کے عہدے پر براجمان جتنے بھی لوگ تھے، سبھی اشرافیہ یعنی حکومت وقت سے آئے ہوئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی عیاشی کی خاطر عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ یعنی غریب لوگ اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ترسا کرتے تھے۔ اس وقت حکومتی خزانہ خالی ہو گیا اور تینوں طبقوں کے لوگوں کی میٹنگز ہونے لگی۔ پادری اور اشرافیہ چاہتے تھے کہ ٹیکس کسی طرح غریب عوام پر لگایا جائے، مگر تیسرا طبقہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ٹیکس غریب عوام کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کو بھی دینا پڑے، اور یہی وجہ بنی انقلاب فرانس کی، جب تیسرے طبقے سے کچھ لوگوں نے انقلاب کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ سینکڑوں میں ہو گئے، سینکڑوں سے ہزاروں میں، اور ہزاروں سے لاکھوں میں ہوتے چلے گئے۔ عوام کی اس بغاوت نے فرانس کو اس وقت خون میں نہلا دیا، جب 14 جولائی 1789 کو کچھ باغیوں نے فرانس میں موجود ایک چھوٹے سے قلعے بستیل پر حملہ کیا۔ اس قلعے میں صرف 7 قیدی قید تھے، اور یہاں ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ تھا۔ باغیوں نے قیدیوں کو رہا کروایا اور اسلحہ خانے میں
जो असला था उठाकर ले गए। इसीलिए तारीख ने 14 जुलाई का दिन इनकलाबे फ्रांस के आगाज का दिन कहा है। 21 जनवरी 1793 को अवामी अदालत के फैसले ने शाह फ्रांस को फांसी पर लटकवा दिया। इसी साल 16 अक्टूबर को मलका को भी फांसी दे दी गई। इन 2-2.5 सालों में इनकलाबी अवाम ने हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसकी ताजी शेव हुआ करती थी, जिसने हाफ निकर पहनी या नए कपड़े पहने हुआ करते थे, या जिसके मुंह से शराब की बदबू आती थी। यानी जो भी शख्स पैसे वाला महसूस होता था सबको कत्ल कर दिया गया। पादरियों को मजहबी अलामत समझा जाता था, मगर इस इनकलाब ने कई एक पादरियों को भी मौत के घाट उतार दिया। मैक्सन मिला रूबेस्पियर, जो कि एक वकील भी था, उसे दहशत के इस दौर में इनकलाबी सियासतदान माना जाता था। उसकी सरबराही में तकरीबन 40,000 लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए। यही रूबेस्पियर इनकलाब को इस्तेहकाम देने में एक जाबर और आमर बन बैठा था। आम यही माना जाता था कि इनकलाब रूबेस्पियर की जुबान बोलता है। रूबेस्पियर खुद दूसरे इनकलाबियों की नजरों में खटकने लगा। आखिर 28 जुलाई 1794 को रूबे और इसके करीबी साथियों को बिना किसी अदालती फैसले के सर कलम कर दिए गए। यूं ये तारीखी कहावत भी सामने आई कि इनकलाब अपने ही बच्चों को निगल जाता है। 1794 से 1799 तक के दौर को थर्ड मॉडर्न दौर कहा जाता है। इसमें सियासी और समाजी असूलों को एक बार फिर सिरे से तरतीब दिया गया था। 1799 में जब नेपोलियन ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और नए सिरे से बादशाहत को बहाल किया, तो इनकलाबे फ्रांस की वाकयाती कहानी अपने अंजाम को पहुंची। फ्रांस का मौजूदा आइन 4 अक्टूबर 1958 को तरतीब दिया गया था। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन, जिसका पुराना नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, फ्रांस में ही बुनियाद रखी गई थी। फ्रांस नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है। यह सलामती कौंसिल का भी मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस दुनिया की 8 एटमी ताकतों में से एक है। इन 8 एटमी ताकतों के अलावा ईरान और इसराइल भी एटमी होने का दावा करते हैं, मगर अभी तक इन ममालिक ने एलानिया कोई भी एटमी हमला नहीं किया है। न्यू कैलेडोनिया के अलावा फ्रांस और इसके 7 मकबूजा इलाकों का कुल रकबा 6,40,679 मरबा किलोमीटर बनता है, और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कुल आबादी 6,72,01,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, और यह दुनिया का 20वां बड़ा मुल्क था। फ्रांस के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो पेरिस शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत होने के अलावा यह फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर फ्रांस की आमदनी में 1/4 हिस्से का किरदार अदा करता है। इस तरह यह अपनी मजमूई आमदनी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। एक जमाने तक यह दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर शुमार हुआ करता था, लेकिन आज ये मुकाम इसके पास नहीं। अलबत्ता दुनिया के 10 खूबसूरत शहरों में पेरिस का शुमार होता है। यह शहर 105 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ अपने अंदर 30 लाख से ज्यादा अफराद को बसाए हुए है। यूरो फ्रांस समेत फ्रांस के 5 मकबूजा इलाकों में मुस्तकिल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि फ्रांस के 3 मकबूजा इलाकों में चलने वाली करेंसी को CFP फ्रांक कहा जाता है। फ्रांक पाकिस्तानी 1.15 रुपए के बराबर है, जबकि यूरो पाकिस्तानी 136.87 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से
फ्रांस पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 और डोमेन .fr है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 36,855 अमेरिकन डॉलर फीकस मजमूई आमदनी के साथ फ्रांस दुनिया में 23वें नंबर पर आता था। फ्रांस में 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इन तारीखी मुकामात के अलावा फ्रांस के कुदरती और मसनूई हुस्न को देखने हर साल करोड़ों अफराद फ्रांस का रुख करते हैं। 2016 में 8 करोड़ 40 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने फ्रांस का रुख किया। सैरो सियाहत के हवाले से फ्रांस दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फिर स्पेन आते हैं। आने वाले इन गैर मुल्कियों से फ्रांस जो कमाता है वो फ्रांस की मजमूई आमदनी का 10% है। सैरो सियाहत के शोबे से फ्रांस के 30 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता हैं। पेरिस एक रूमी सल्तनत का शहर था जिसका पुराना नाम लिटेटिया था। फ्रांस का मुकम्मल नाम फ्रेंच रिपब्लिक या जमहूरिया फ्रांस है, जो मगरबी यूरोप में वाक़े एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जिसके शुमाल मशरिक की तरफ बेल्जियम और लक्सबर्ग, मशरिक में जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इटली और मोनाको जनूब मशरिक में, स्पेन और इंडोरा जनूब और जनूब मगरिब में मौजूद हैं, जबकि समुंदर पार फ्रांस के मकबूजा इलाकों की सरहदें मजीद कई ममालिक से मिलती हैं। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी और दफ्तरी जुबान है। फ्रांसीसी के अलावा इटालियन, डच, जर्मन, फ्लेमिश, ऑक्सीटान, ब्रेटन और दीगर कई गैर मुल्की जुबानों के अलावा इंग्लिश दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फ्रांस में हर 5 में से 1 आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। ज़हनी दबाव के हवाले से फ्रांस दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके 12 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं। फ्रांस के अलावा किसी भी मुल्क के इतने टाइम जोन नहीं हैं। 1814 से 1830 तक किंगडम ऑफ फ्रांस का परचम बिल्कुल सफेद और बिना किसी अलामत के था। 2012 तक पिछले 214 सालों से फ्रांस में लड़कियों के ट्राउजर पहनने पर पाबंदी आयद थी। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी जुबान है, मगर यह फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में बोली जाती है, जहां कई बरसों फ्रांस का कब्जा भी रह चुका है। फ्रांस में रहते हुए आप स्काइप से तमाम टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। पेरिस में टैक्सी ड्राइवर को लाइसेंस के हसूल के लिए 2 लाख यूरो तक फीस अदा करना पड़ती है। इसीलिए पेरिस के लाइसेंस होल्डर की तादाद बहुत ही कम है। गैलिक मुर्ग फ्रांस का कौमी जानवर है। फ्रांस की आबादी में 90% फ्रांसीसी लोग, जबकि बाकी 10% दीगर ममालिक से फ्रांस में आकर बसने वाले लोग हैं। फ्रांस में किसी भी कैदी की हथकड़ियों में ली गई फोटो शाया करना एक जुर्म है, जब तक वो मुजरिम साबित न हो जाए। फुटबॉल फ्रांस में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है। फुटबॉल के अलावा जोडू कराटे, टेनिस, बास्केटबॉल, रग्बी, हैंडबॉल, मोटर स्पोर्ट्स, आइस हॉकी, साइकिलिंग, क्रिकेट और दीगर कई एक खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं। दोस्तों, ये थी फ्रांस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।